रिलेशनशिप के ऊपर बात करना इज कंसिडर्ड टू बी अ टैबू इन द सोसाइटी. हमें बेसिकली शर्म आता है when we talk about the term relationship. I feel it is super important that we talk about this term because ultimately it is a serene feeling. And I'm pretty sure कि आप भी यही होप कर रहे होगे कि काश मैं इसके बारे में किसी से बात कर सकता, काश मैं इसके बारे में किसी से शेयर कर सकता. While कुछ % ऑफ प्रॉब्लम तो मैं आज आपके लिए सॉल्व कर देता हूं. We have two amazing people with us. I must say we have an amazing couple with us. They are the sweetest people I have ever known, the sweetest family जिनसे मैं मिला हूं, and I genuinely don't mean सिर्फ for the camera, but they are one of the people whom I really feel blessed to have in my life. We have with us CA Mohit Sankla and CA Priyanka Jain Sankla. Okay, this was tough. And first of all, I really feel honored and I really thank you for coming in and discussing about such an important topic. It really means a lot. Hi Shashank, thank you for the lovely introduction and giving us an opportunity to talk about such an important topic, which is obviously considered as a taboo in our society. I don't know why. Really, and introduction तो कुछ ज़्यादा heavy हो गया, मतलब थोड़ा absorb करने के लिए time लगेगा. And really Shashank, it's thank you for being so thoughtful कि ये topic के बारे में हम लोग discuss करें and इसके बारे में सीखें. Because जब भी relationship का word आता है, I remember there's a research, very long research, 75-year research, जिसको अगर हम tens and thousands of people को एक simple line में बोले, तो that is कि good relationship makes your life healthier and happier. तो जब relationship का importance इतना ज़्यादा है, that makes your mental health and physical health very good. So why not we discuss about that, and why not learn from each other? So I think it's very important to discuss about the issue. And yes, quality of relationship matters a lot. Bitter relationships हमेशा toxic हो जाते हैं और किसी को भी ये शायद पसंद नहीं होगा. Really, and in simple words, हमारा जो life, a good life के लिए good relations बहुत जरूरी है. And ये एक never ending process है जिसमें हमें दिन रात work करना है. आपको retirement कभी नहीं मिलेगा. True. So that is amazing, you know, and it is something which is very nice to hear कि ये इतना important topic है and इस topic के बारे में ज़्यादा बात नहीं होता है, but I really feel that it is really important कि हम इसके बारे में बात करें and we discuss about it. So this is something which is really, really important and it is important that we talk about it basically. So like आपको इसे हमारा system पता है कि हम जब भी पूछते हैं तो directly पहला जो question होता है वो generally bomb question होता है. No doubt कि हमने थोड़ा इस podcast को हल्का सा on the lighter side रखा है. तो if you are a viewer and you are watching it, then please make sure कि आप लोग last तक देखें क्योंकि बहुत मजा आने वाले हैं. Last की चीजों को miss मत करना because we have surprises for the special couple and I really hope कि इनको भी मजा आए, आप लोगों को भी मजा आए और हमें भी मजा आए. So like the serious question, the most important question that I feel is to be asked on the first place is कि why is it important that we are talking about relationship? I know you have discussed the importance, but we really want to know more कि सबसे ज़्यादा जरूरी क्यों है, क्यों लगता है कि इसके बारे में हमें actually बात करना चाहिए. Shashank, do you remember when you cleared your class 10? You remember, right? Yeah. Class 10 in fact दिया ही, exams दिया, and उसके बाद हम एक career counselor के पास जाते हैं कि भाई इनका results आने के बाद हम कौन सा stream choose करें, इसके लिए कौन सा career अच्छा होगा, कि career plays an important role in our life. तो बहुत जरूरी भी है कि उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करें. बट अगर आप मैरिज को देखो, घर पे सबको पता है कि इसकी शादी कर देनी, बट वी नेवर डिस्कस अबाउट इट कि हाउ टू चूज अ लाइफ पार्टनर, तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, ये जो एक पाथ है इसको एक ब्यूटीफुल पाथ कैसे बनाया जाए. करियर में तो आप बीच में मिडवे चेंज भी कर सकते हैं, बट रिलेशनशिप्स आर फॉर लाइफ टाइम, जनरली फॉर लाइफ टाइम. तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करते. And that's a very sad part about relationship, I guess, जो हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे. वही हमारा फोकस इस चीज पर कभी नहीं रहता है कि उसका क्या चॉइसेस है लाइफ को लेके, उसको अभी शादी करना है या नहीं, वो प्रिपेयर्ड है या नहीं, या अपने लाइफ पार्टनर को लेके क्या चॉइसेस है, कुछ नहीं पता. बस हमारा इसी चीज पर फोकस रहता है कि कुंडली मिली कि नहीं. अरे भाई, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट जिसका लाइफ के लिए लाइफ चेंजिंग डिसीजन है उससे कोई डिस्कशन ही नहीं होता है. I mean, वो प्रिपेयर्ड है या नहीं, उसकी क्या चॉइसेस है, कुछ भी नहीं.
I think open discussion is must. It's necessary, really. that is absolutely correct actually because ये important है कि इसके बारे में हम लोग बात करें, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें, इसके बारे में हम लोग और ओपनली बातें करें ताकि ये जो ऑकवर्ड मोमेंट है जो कि शायद 20-25 साल बाद फैमिली में आ जाता है कि कोई पसंद हो तो बताओ मुझे, मैं करवा देता हूँ बात तुम्हारा, वो ऑकवर्डनेस शुरू से हमारे फैमिली में एम्बेडेड रहे एंड दैट इज व्हाट इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट एंड आई रियली होप कि ये चेंजेस आए सोसाइटी में बिकॉज जरूरी है, आई फील दैट्स अबाउट इट, जरूरी है. सो लाइक भैया अगर मैं आपसे पूछूं एंड भाभी आपसे मैं पूछूं तो एक होता ना कंसेप्ट नोन एज लव एट फर्स्ट साइट. ओहो पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि हवा रुक गई है और पत्तियां धीरे धीरे गिर रही है और सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा है. तो आई नो कि इट्स बहुत सारी चीज इसकी वजह से ये प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो गया बिकॉज देयर इज बॉलीवुड मूवीज एंड उन्होंने यही सब हमें पोर्ट्रे किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो मुझे सिर्फ जानना है कि या ये सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में ही होता है या आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा बहुत रियल लाइफ में भी हल्का फुल्का जो है लव एट फर्स्ट साइट ये रियल लाइफ में भी होता है. सो व्हाट डू यू फील? शशांक, लव एट फर्स्ट साइट सुनने में बड़ा अच्छा लगता है एंड मूवीज के लिए तो और भी अच्छा है, बट लव एट फर्स्ट साइट, लव इज अ वेरी डीप वर्ड. अगर आप लव के डायमेंशंस की बात करें तो देयर इज फिजिकल डायमेंशन इन्वॉल्व, इमोशनल डायमेंशन इन्वॉल्व एंड मेंटल डायमेंशन इन्वॉल्व. तो फिजिकल डायमेंशन बहुत एक छोटा रोल प्ले करता है लव के केस में. एंड अट्रैक्शन की बात करें दैट इज टोटली फिजिकल डायमेंशन जिसमें हमारा बायोलॉजी का रोल है, दैट इज नेचर्स प्रोसेस, राइट. अब अट्रैक्शन आपको किसी से भी हो सकता है, दैट इज मैन टू मैन, मैन टू वुमेन एंड वुमेन टू वुमेन. सो अट्रैक्शन में हमने कुछ हमारे तरफ से ज्यादा कुछ नहीं हो रहा और जरूरी नहीं कि वो सबसे खूबसूरत लड़की या सबसे हैंडसम लड़का हो. वो शायद वीर ज़ारा में तुमने एक डायलॉग सुना होगा, ऐसा तो था नहीं कि इससे खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी पर पता नहीं क्यों इसके चेहरे से नजर नहीं हटती थी. तो यही है कि अट्रैक्शन में रीजन कुछ नहीं होता, यू गेट अट्रैक्ट टू समवन विदाउट एनी रीजन एंड यही बायोलॉजी की ब्यूटी है. एंड लव इज अ वेरी डीपर कॉन्सेप्ट. सो मुझे लगता है कि फर्स्ट साइट पे आप लव नहीं कर सकते किसी से क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन का रोल आ जाता है, दैट इज फिजिकल डायमेंशन. हमारे साथ भी तो यही हुआ था ना, we got attracted to each other and eventually we ended up being together. Time right. Definitely played its role. Definitely. So that's like something which is really beautiful, you know, and to see such a beautiful couple. तो जैसे कि अभी भाभी ने कहा कि लव एट फर्स्ट साइट जैसा कुछ हुआ नहीं था, अट्रैक्शन तो जरूर हुआ था. तो मैं जो इक्वली पूछना है आप लोग दोनों से, इंडिविजुअली पूछना है कि आखिरकार स्टोरी क्या था, हल्का हल्का थोड़ा जाने तो सही कि आप लोग का स्टोरीज क्या था. तो भैया एंड भाभी आप लोग इंडिविजुअली बताए कि व्हाट हैपेंड. पहले तो भैया बताए, उसके बाद में भाभी बताया बिकॉज गर्ल्स ऑलवेज हैव अ डिफरेंट साइड ऑफ टेकिंग अप द सिचुएशन बेसिकली. तो बताइए भैया कैसा था, मतलब व्हाट हैपेंड व्हेन यू फर्स्ट सॉ भाभी? पहली बार वो एग्जैक्टली मुझे वो परफेक्टली वो इंस्टेंस याद है जब मैं सीनियर था, इससे आर्टिकलशिप का टाइम था तो फोकस तो ज्यादा काम एंड पढ़ाई पे रहता है, बट कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स आए थे फॉर न्यू आर्टिकल्स एंड उसमें से एक फॉर्म प्रियंका का था. सो आई सॉ द फॉर्म, एक छोटा सा पासपोर्ट साइज फोटो था उसमें, फोटो कुछ ज्यादा अच्छा था. तो नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि रियलिटी उससे खराब था बट फोटो काफी अच्छा था. तो अट्रैक्शन फोटो से हो गया एंड एक कहीं था कि आई होप कि शी जॉइन्स द फर्म एंड ऐसा कोई उस समय सोचा नहीं था कि आगे जाके क्या होगा, बट या इट्स गुड कि वी एंडेड अप बीइंग टुगेदर एंड या एंड इससे पूछो आप बताइए भाभी आपके फेज में क्या हुआ था? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. जब ऑफिस में मैं इंटरव्यू देने गई थी तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन आई सॉ, तो काफी अच्छा लग रहा था. तो देखो फर्स्ट पर्सन देखा इसलिए अच्छा लगा वो नहीं है, मतलब समझ लेना, मतलब फर्स्ट आर्टिकल सर को तो ऑब्वियसली देखा था पर अच्छा लगा, काफी लुक्स वगैरह काफी अच्छे थे एंड आई गॉट अट्रैक्टेड टू हिम. बस ये अभी भी ब्लश कर रही है. I can really see the romance अभी भी, वो sweet memories को relive करना is one of the best things that you can do basically, and I can really feel why this connect is actually there, which is absolutely beautiful and the stories are also pretty interesting. Well, वैसे मगर हम articleship forms को ऐसे देखने का आपको
सजेस्ट नहीं करते हैं इस तरीके से, आप जरूरी नहीं है कि आप अट्रैक्टेड हो किसी से, बट या दैट्स अ स्टोरी जिसे हमें एंजॉय करना चाहिए। तो लाइक अभी मैं आपको थोड़ा सा एक सीरियस क्वेश्चन पूछता हूँ, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट दैट वी डिस्कस, कि दैट अट्रैक्शन पीरियड और दैट हनीमून पीरियड दैट वी ऑल लिव एंड वी एंजॉय, जहां आपको सारी बातें अच्छी लगती है, उसकी स्माइल अच्छी लगती है, उसकी बातें बड़ी स्वीट लगती है, दैट पीरियड इज फाइनली ओवर। यू नो दैट पीरियड वेयर वी रियली फेस द रियलिटी हैज कम अप, ठीक है, जहां हमें कुछ चीजें इरिटेट करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें गुस्सा आता है कि क्यों रेगुलरली मुझे कुछ चीजों के बारे में आप पूछ रहे हो, ठीक है, एंड देयर इज वेयर थिंग्स गो अ लिटिल रॉन्ग, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो सकता है। तो आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें इस सिचुएशन को सही तरीके से फेस करें हम, बेसिकली हाउ डू वी फेस दिस सिचुएशंस डायरेक्टली, एंड अगर हम लोगों ने बाय चांस कुछ गलती कर दी है, वी हैव बेसिकली स्क्रूड अप, देन इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा जो ये ब्यूटीफुल जर्नी है रिलेशनशिप का, ये बहुत स्मूथली जा सके। व्हाट डू यू गाइस थिंक? Very nice question, Shashank. As you said, the honeymoon period is over or the attraction phase is over. जो हमारा best phase था relationship का वो शायद over हो गया है। तो अब आ जाता है the reality phase, जहां पर हम लोग closer आते हैं and see the reality. I'll give you an example. हम लोग एक garden में गए, for example, हमने एक rose देखा कि वाह, it's a beautiful rose, and we got attracted. तो attraction की वजह से हम closer आते हैं, we see the rose and we start seeing the thorns also. prickles and thorns जो भी रहता है वो we start seeing the thorns also. वो पहले भी exist कर रहा था but अब हम उसको देखने लग गए। उसी तरह एक relationship में भी जब हम लोग closer आते हैं तो हम वो thorns देखने लग जाते हैं। Thorns denotes जो आप the things you dislike about the other person. तो exist तो वो पहले भी करता था but वो जो एक initial attraction की वजह से वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई नहीं दिया। जब हम closer गए relationship में we could start seeing the thorns. दिक्कत ये नहीं है कि हमें thorns दिखने लग गए, दिक्कत तब आती है जब हम चाहते हैं कि रोज का डेफिनेशन चेंज हो। I mean we need the flower part only. रोज को डिफाइन अगर हम लोग करना चाहे तो रोज इज comes with the thorns. शायद अगर thorns नहीं होते तो रोज एग्जिस्ट ही नहीं करते, बट हमें चाहिए वो सिर्फ फ्लावर पार्ट। तो दिक्कत वहां आने लग जाती है, एंड वी ट्राइंग टू चेंज द पर्सन कि आपके थॉर्न्स हटा दो, ये जो भी। सो दैट इज द सैडेस्ट पार्ट कि अगर हम ये करने लग जाए तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इस फेज के बाद बिगड़ जाती है। एंड ये फेज अगर सर्वाइव कर जाए देन इट विल फॉर्म द पिलर ऑफ द रिलेशनशिप। Yeah, we must never try to change the other person. If we truly love someone, their imperfections won't matter. Yeah. But obviously we must inspire each other to be a better person. अगर हम कोई और रिलेशन कंसिडर करें, कोई मदर सन का या फादर डॉटर या और कोई भी रिलेशन, और चाहे कितना ही बड़ा झगड़ा क्यों ना हो जाए, हम कभी ये नहीं सोचते कि मैं ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहती या मैं आपसे बात नहीं करूंगी, हम लोग टॉकिंग टर्म्स में नहीं रहेंगे। थोड़े टाइम में हम सब कुछ सेटल कर लेते हैं, पर कभी एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में अगर कोई झगड़ा हो जाए तो हमें बैकआउट करना एक इजी ऑप्शन लगता है। Instead, we must give time to build the relationship stronger. Give time, have patience, and the relationship will blossom. Yeah, sure. True. That is absolutely lovely. You know, basically be real in your relationship, stay true in your relationship, and बस टाइम दो, थोड़ा सा वक्त दो, तो शायद बहुत कुछ चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल कपल ओवर हियर इज सजेस्टिंग अस, एंड आई रियली फील कि सिंस ये सजेस्ट कर रहे हैं तो अच्छा ही सजेस्ट कर रहे होंगे। एंड दैट इज ब्यूटीफुल, यू नो, दैट आंसर क्वालिटी ऑफ दैट रोज का एंड दैट थॉर्न्स, बिकॉज थॉर्न्स तो रहेंगे रोज में, एंड हमें जो है उस इंसान को चेंज नहीं करना है, ठीक है, हमें उनके इम्परफेक्शंस के साथ में एक परफेक्ट सी जोड़ी बनानी है। दैट इज व्हाट इज important, I believe, and yeah, that is lovely because ऐसी बातें जो है वो हमारी thought process जो है उसको basically improve करते हैं। So like आपने ऑलरेडी बोल दिया कि हमें जो है डिस्कशन करना चाहिए, हमें इसके बारे में बात करना चाहिए, and it's very important that we share our feelings with a lot of people and especially those people who are really important for us and जिनके साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर हम टाइम स्पेंड करने की बात करें तो जनरली दो लोग होते हैं जिसके साथ में हम लोग टाइम स्पेंड सबसे ज्यादा करते हैं। दोज आर आवर पेरेंट्स एंड आवर फ्रेंड्स। जनरली हम लोग कुछ मामलों में शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में, फ्रेंड्स के साथ बेसिकली, कि क्या चल रहा है हमारे लाइफ में एंड यार वो पसंद आ गई है हमें। बट पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इस इंफॉर्मेशन से थोड़ा सा आइसोलेटेड रहते हैं।
they're always like कि नहीं उनके सामने बात नहीं करना, पापा जज करेंगे, मम्मी जज करेंगे, मम्मी डांटेगी, अब्बा नहीं मानेंगे, जैसा वो बोलते हैं. तो basically what do you feel is the importance of expressing our feelings to the most integral part of our lives, which are actually our parents? You know, how important is that we talk about a very integral thing in your life with the most integral part of your life, जो आपका basically life बनाता है, आपका घर बनाता है. So what do you feel is the importance of parents in case of a relationship? What do you feel? राइट शशांक, जैसा कि तुमने कहा कि पेरेंट्स फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड जो हम लोग सोसाइटी में बिलोंग करते हैं एंड जो कल्चर से बिलोंग करते हैं, वहां पर पेरेंट्स का रोल को कभी भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते. दे ऑलवेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. बट अब बात करें हम लोग पेरेंट्स की. पेरेंट्स में हो सकते हैं फ्लेक्सिबल पेरेंट्स हो, ओपन माइंडेड हो, तो वो चैप्टर तो दिक्कत ही नहीं है. वहां पर इजीली आप घर पे ओपनली डिस्कस कर रहे हैं एंड मैटर कभी भी इशू बनता ही नहीं है. सिंपल सा डिस्कशन में रिजॉल्व हो जाता है. अब बात करें हम लोग रिजिड पेरेंट्स की. अब रिजिडिटी के रीजन हो सकते हैं. रीजन क्या? एक रीजन ये हो सकता है कि उन्हें सोसाइटी का डर हो. बहुत बार फैमिली में डर रहता है कि अरे लोग क्या कहेंगे, मेरा इतना इज्जत मैंने इतने सालों से कमाया है, तुम एक दिन में इसको बिखार दोगे, जो भी खराब कर दोगे. तो वो एक डर बहुत एक कॉमन फिनोमेनन है कोई भी घर के लिए. तो इसमें द रूट कॉजेस, दिक्कत क्या आती है, आप देखना बचपन में, चाहे हम लोग अपने घर की ही बात कर ले, कहीं ना कहीं हम लोग सोसाइटी का खुद एक हिस्सा है. हम लोग फॉर एग्जाम्पल मेरा फ्रेंड फेल हो गया, हम लोग घर पे मम्मी वो तो फेल हो गया, अच्छा बेटा फेल हो गया, तुम्हारा तो इतना अच्छा मार्क्स आया. या फिर अरे उसके पड़ोस की बेटी तो उसके साथ भाग गई, अरे इसका तो जॉब लॉस हो गया. कहीं ना कहीं वी डिस्कस पीपल. जब हम लोग उनके एब्सेंस में उनके नेगेटिव जो भी उनके साथ हुआ वो हम लोग डिस्कस करते हैं, तो हमें डर उसी बात का रहता है कि हमारे घर पे कुछ ऐसा ना हो जो लोगों को डिस्कस करना पड़े. तो डर उसी चीज का है, बिकॉज वी आर डूइंग द सेम. तो हम लोगों ने एक आपस में एक रूल बना के रखा है कि विल नेवर डिस्कस अबाउट पीपल इन देयर एब्सेंस. हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे. अगर हमें कुछ पॉजिटिव डिस्कशन करना है, कुछ उनसे सीखना है, देन वी कैन डिस्कस, या फिर उन्हें बोल के उनके लाइफ को बेटर बनाओ. बट डिस्कसिंग अबाउट दैट्स अ रॉन्ग थिंग. तो पहला मुझे लगता है कि एक जो सोसाइटी का जो एक स्ट्रेस वाला इशू है वो चीज रिजॉल्व हो जाएगा इससे कुछ काफी हद तक. एंड दूसरा, अगर आप देखें, पेरेंट्स को बहुत बार लगता है कि यू आर नॉट मैच्योर्ड ना टू मेक दीज डिसीजंस, राइट. तो मैच्योरिटी की बात करें तो बहुत बार अगर आप देखिए तो करियर में आप जॉब कर लो अकेले बैंगलोर में जाके या मुंबई में जाके, या मैच्योर्ड ना. आप इनफैक्ट क्लास 12 प्लस 2 पढ़ने जा रहे हो बैंगलोर में जाके, या आप बोर्डिंग स्कूल जा रहे हो, या मैच्योर्ड ना. और इतने न्यूमरस डिसीजंस है जिसमें हम लोग से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मैच्योर्ड हो, कि आपको ये करना चाहिए. तो अगर जो एक लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसमें उस बच्चे को भी या उस बेटे या बेटी को भी एंड पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि मैच्योरिटी तो लानी होगी. एंड उस बच्चे को भरोसा दिलाना पड़ेगा. एक जिद नहीं लगनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई लव समवन, फॉर एग्जाम्पल XYZ, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं उसी से शादी करूंगा, मेरी तो मैं मर जाऊं, मैं खाना नहीं खाऊंगा. नॉट लाइक दैट. वो एक बचपना होगी. बट मैच्योरिटी, अगर आप मैच्योर तरीके से डील करें इस चीज को कि मैं आई हैव चोजन माई लाइफ पार्टनर एंड आई वांट टू स्पेंड माई लाइफ विद हर और हिम, तो ये मैं पूरी जिंदगी उसके साथ स्पेंड करने वाला. सो अगर आप ये मैच्योर तरीके से हैंडल करें तो कहीं ना कहीं कुछ में जाके कन्विंस करके आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, बहुत बार दिक्कत क्या आ जाती है कि पेरेंट्स मजाक मजाक में, मैं 16 साल 17 साल का हूँ, मजाक में बोल दिया तुम अपने लिए लड़की मत ढूंढ लेना, मैं ही हम तुम्हारे लिए ढूंढूंगा या हम ही तुम्हारे लिए ढूंढेंगे. वो मजाक मजाक में वो भी बच्चा भी इग्नोर कर दिया. 6 to 7 years बीत जाते हैं. अचानक से एक दिन वो बच्चा आके बोलता है कि मॉम, आई हैव बीन इन रिलेशनशिप सिंस लास्ट 5 years एंड मैं इसी से शादी करूंगा. पेरेंट्स एक लगता है अरे ये तो एक शॉक है, मतलब क्योंकि यू हैव, जब भी आपको ये मजाक के तौर पे या डिस्कशन आपने हमेशा इग्नोर किया. अगर फर्स्ट डे ही आपने वो चीज उन पे पुट कर दिया होता कि मॉम मुझे लगता है कि आई शुड चूज एंड मेरा ये एक व्यू पॉइंट है या मैं ऑलरेडी पसंद करता हूँ, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो पीक का रिएक्शन उस समय आए. बट टाइम, बोलते ना टाइम समटाइम्स हील्स, मतलब टाइम एक हीलिंग फैक्टर रहता है. तो अगर आप राइट टाइम पे बोल दो तो कुछ टाइम बाद कहीं ना कहीं उनका व्यू पॉइंट चेंज होगा. दोनों तरफ से एक एक स्टेप्स लिया जाएगा एंड एक कॉमन सोल्यूशन पे हम लोग आ सकते हैं. सो आई थिंक पेरेंट्स का रोल इम्पोर्टेंट है. एंड प्रियंका, वुड यू लाइक टू से समथिंग? मैं हमारे केस का एक
बोलना चाहूंगी। हमारे केस में हम लकी थे कि हमें रिजिडिटी फेस नहीं करना पड़ा। हमारे पेरेंट्स थोड़े फ्लेक्सिबल थे और इतना प्रॉब्लम्स नहीं आया। बट देयर इज अ गुड थिंग कि एवरीवन चेंजेस विद टाइम, बस थोड़ा रेजिस्टेंस टू चेंज होता है स्टार्टिंग में, तो इसलिए पेरेंट्स लोग थोड़े रिजिड रहते हैं, लेकिन विद टाइम वो भी समझने लग जाते हैं। वो लोग भी अपने बच्चे के हिसाब से, वो लोग भी सेम थिंकिंग प्रोसेस वो लोग भी अपनाने लग जाते हैं। और बस यही है, और मोहित ने बता ही दिया कैसे क्या चेंज करना है। आई होप इट हेल्प्स। या ट्रूली इट रियली विल हेल्प। एंड जैसे कि मुझे वैसे तो स्टोरी पता है भैया की कि किस तरीके से भैया ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ऑफ थिंकिंग कि हाँ मैं रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ बेसिकली। तो लाइक बट obviously the audience wants to know the creamy part, they want to know the story कि किस तरीके से भैया ने अपने घर पे बताया था या अपने पेरेंट्स से किस तरीके से डिस्कस किया था, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। मेरे साथ मेरा जो क्या इंसिडेंट, कैसे मैंने बताया, आई एग्जैक्टली रिमेम्बर द डेट जब हम लोग जिस दिन कमिटेड हुए, इस वे बैक सिंस मतलब 2012 पे, अप्रैल 2012। तो हमारा शायद 3-4 घंटा फोन पे बात हुआ एंड आई प्रपोज टू हर एंड इवेंचुअली शी एग्रीड एंड मतलब म्यूचुअली था कि हम लोग अब एक दूसरे को एज लाइफ पार्टनर्स देख रहे हैं। वो रात के 9 बजे शायद डिसाइड हुआ होगा। रात को 10 बजे मैंने अपनी मॉम को एंड सिस्टर को बताया कि आई हैव चूजन अ लाइफ पार्टनर फॉर मी एंड शी इज द वन। दे रियली सपोर्टेड माय डिसीजन एंड दे वर रियली हैप्पी। एंड ये बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं था, मुझे कन्विंस नहीं करना पड़ा। दे कंसिडर्ड मी दैट आई एम मैच्योर्ड नाउ to take this decision. They supported me. Even 3-4 days बाद मैंने डैड को भी बता दिया and हाँ सब बहुत सपोर्ट मिला and it was really good। और ये जर्नी मेरे लिए बहुत easier रहा। तो like is it the same for you also या आपके लिए थोड़ा अलग था of sharing it in front of your parents basically? What was your story? मैंने इनिशियली तो नहीं बताया था अपने पेरेंट्स को, लेकिन हाँ जब मैंने बताया तो वो लोग भी काफी सपोर्टिव थे। जैसे ही बोला उन्होंने नेक्स्ट डे यहाँ चलो मिल के आते हैं, और विद इन अ वीक सब कुछ हो गया। विद इन अ वीक हम लोग का एंगेजमेंट तक हो गया था। अरे तो काफी सपोर्टिव थे। जिसने बताया उसकी 10 दिन के अंदर हमारा एंगेजमेंट हो गया था। तो बर्फी लेकर कांजू वांजू लेकर भैया आ गए घर पे और बोला कि बस लड़का सही है, लड़की भाग ना जाए, बढ़िया लड़का है, सीए वगैरह है और भैया फिक्स कर लो इसको। तो दैट्स ब्यूटीफुल। तो लाइक नाउ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस इज दैट कि जरूरी है कि आप अपने फीलिंग्स को, अपने चीजों को अपने पेरेंट्स एंड आवर लव्ड वंस से डिस्कस करें, बिकॉज हाँ डिफिकल्ट होता है, बहुत जगह पेरेंट्स नहीं भी मानते हैं, बट अगर आपने सही तरीके से दिखाया दैट यू आर मैच्योर्ड इनफ तो देयर आर लाइकली चांसेस कि वो मान जाए। बट हमें क्या चीज सीखना है कि इन केस अगर वो नहीं मानते हैं एंड कभी कभी चीजें आपके हिसाब से नहीं होता है, सो वी शुड नॉट बी इन अ जिद्दी पोजीशन कि हम ये करके रहेंगे, because at the end of the day it's important that we all live in a beautiful manner. That is what we have understood, which is really beautiful to understand. And like for example से आपसे बात करते करते बहुत सारे ऐसे जन हैं जो कि इंस्पायर हो सकते हैं। एंड जिस तरीके से मैं एनालिटिक्स देख रहा हूँ अपना यूट्यूब में, सब्सक्राइबर्स जो है हमारे, that is basically the age of 16 and up, and basically they might be students or they might be professionals or undergoing professional training in some way or the other, or they are basically parents because they are of the age of 45 से 54 approximately. तो इस क्राउड साइज में ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि आपसे अट्रैक्टेड हो गए। अब वो बोलते हैं कि सर पसंद तो है मुझे, ठीक है, बट सर मुझे लगता है कि क्या पता जो है आपका मेरा फोकस हिल जाए, बेसिकली मेरा फोकस हिल जाए। मैं जो करियर अभी चूज कर रहा हूँ, जैसे सीए के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इट इज अपने आप में इतना ज्यादा मतलब हॉलिस्टिक कोर्स कि कहीं ना कहीं मेरे अटेम्प्ट न लग जाए और फिर मतलब डर लगता है कि कहीं ना कहीं वो करियर ही खराब नहीं हो जाए मेरा। तो जो ये डर है, जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा वैलिड रीजन है, ठीक है, उसको अपन किस तरीके से कवर अप करें? हाउ डू वी बैलेंस बोथ स्टडीज, करियर एंड ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग? किस तरीके से, क्या एडवाइस आप देना चाहते हो फॉर ऑल द यंग टर्क्स लुकिंग एंड सर्चिंग फॉर लव बेसिकली? शशांक, ये जो बैलेंस की बात है, अभी हम लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग दो चीज का बैलेंस की बात कर रहे हैं, करियर एंड लव। बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मल्टीपल चीज बैलेंस कर रहे हैं। आपका फैमिली, करियर, हेल्थ, फ्रेंड्स, तो एक लव एक एडिशनल चीज की बात कर रहे हैं।
सो यू आर ऑलरेडी बैलेंसिंग दीज 4 फैक्टर्स. अगर आप बैलेंस नहीं करें तो भी आपका एक बैलेंस बिगड़ा हुआ है. अगर आपका हेल्थ बहुत बिगड़ गया, आपका करियर बहुत अच्छा चला जाए, तो भी इम्बैलेंस है, एग्जिस्ट करता है. तो बैलेंस हमें एक एडिशनल चीज की करनी है. अब हम रीजन ढूंढते हैं व्हाई कि मेरा करियर पे इम्पैक्ट क्यों आना. अगर मेरे पास लव रीजन नहीं है तो मैं फैमिली को भी रीजंस तो बनाना बहुत इजियर टास्क है कि व्हाई आई कुडंट पास. बट अगर मुझे कमिटमेंट है, आई नो व्हाट आई हैव टू डू, मेरा इमीडिएट अटेंशन क्या चीज चाहिए. फॉर एग्जांपल हमारे रिलेशन को देख लिया. जब मैं जब पहले प्लान किया था कि मैं सोचा था कि जब मैं सीए में एंटर कर गया, आई विल नॉट एंटर इनटू एनी रिलेशनशिप. बट जो वी हैपेंड, तो मुझे लगा कि नहीं, शी इज द राइट वन फॉर मी, तो आई कैन पोस्टपोन इट. मैं नहीं बोल सकती तुम 2 साल बाद आना जब मेरा करियर सेट हो जाएगा. जो दैट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू, क्योंकि लाइफ में आप मल्टीपल डायमेंशंस हैंडल कर रहे हैं. दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ. तो अगर मुझे उस मोमेंट में लगता है शी इज द वन, एंड मुझे लगा कि उस ट्रैक पे जाना चाहिए, दैट वाज माय इमीडिएट अटेंशन. पर जब सीए फाइनल्स आया एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट, आई वुड से शी वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई कुड क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट. क्योंकि उसका जो सपोर्ट रहता है, वो सेम बात अगर मैं बोलूं कि सिंपल सा बात है, नहीं ध्यान से करो, हो जाएगा, टेंशन मत लो, दैट इज वेरी, मतलब एक जनरल सा बात है कोई भी बोलने से. बट अगर कोई आपका एक लव, जिससे आप लव करते हैं, बोलते हैं सपोर्टिंग फैक्टर है, वो बोलने से कहीं ना कहीं माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करता है, कहीं ना कहीं कामनेस आ जाता है. आपके स्ट्रेसफुल सिचुएशन को वो थोड़ा सा काम बना देता है. तो आई थिंक अगर आप चैनलाइज करें प्रॉपरली, और इस रिलेशनशिप को आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चैनलाइज करें बेटर वे में, तो मेरे हिसाब से दे बिकम अ सपोर्टिंग फैक्टर फॉर योर लाइफ, एंड आप कहीं ना कहीं बेटर वे में हर फील्ड में सक्सेसफुल रहें. That is absolutely beautiful actually, because it's all about the view. I guess that is super important कि एक व्यू कैसा है आपका. आप चाहे तो वो नेगेटिव जा सकता है, एंड अगर आप चाहे तो वो पॉजिटिव जा सकता है. अगर आपको लगता है कि हाँ वो मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम बन रहा है, तो शायद आप अपने करियर में अच्छे कर सकते हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पर्सन एंड women and men have become successful because they had a beautiful life partner with them. So I really feel that it's all about the objective, it's all about the direction, it's all about the outlook basically that we carry with us, and that is something which I have also learned, because मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद तक मैं दोनों चीजों को बैलेंस नहीं कर सकता अच्छे से, and this has actually changed my outlook to a particular extent. And finally, जैसे आपने कहा कि she is the one, ठीक है, शी इज द वन, यू फेल्ट कि हाँ सही है, ठीक है. एंड कब वो फीलिंग आता है, कब दैट फीलिंग कम्स व्हेन यू कैन एक्चुअली से यू नो व्हाट, शी इज द वन, एंड आई नीड टू रियली गेट मैरिड विथ हर, एंड आई सी द एंटायर लाइफ विथ हर. हाउ डू यू फाइंड दैट टाइम वेयर यू से शी और ही इज द वन? एंड आपके केस में क्या हुआ था? शी इज द वन या ही इज द वन. हमारे केस में बाद में बताता हूं मैं कि, बट ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप व्हेन यू गो थ्रू द अट्रैक्शन फेज, फिर जो नेक्स्ट फेज आता है, इवेंचुअली एक पॉइंट आता है जब आप लोग 2 पर्सन के बीच में एक थ्रेड एस्टैब्लिश हो जाता है, वेरी थिन थ्रेड. यू आर कनेक्टेड इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली. आप हर रूप में, हर डायमेंशन के रूप में आप कनेक्टेड हो. नाउ कम्स द रोल कि हम लोग दोनों को व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द थ्रेड थिकर, राइट. सो एक मोमेंट ऐसा आता है जब थ्रेड एस्टैब्लिश हो गया, तो आपको ये नहीं देखना है कि वेदर ये मुझे जिंदगी भर के लिए मेरे लिए है कि नहीं. वी मस्ट सी कि वेदर आई कैन लव हर अनकंडीशनली फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. अगर वो मोमेंट आ जाता है, देन यू थिंक कि मैं तो इसके लिए हूं, एंड शी विल डिसाइड कि ये मेरे लिए है कि नहीं. सो दैट इज वेरी इजियर वे, बिकॉज आपका एक्सपेक्टेशन 0 है सामने से. Obviously she is doing and she'll do everything for you, but आप अगर ना भी करे हो तो भी आपके तरफ से लव कभी कम नहीं हो. एंड जब ये एक इमोशन एस्टैब्लिश हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक फादर एंड सन का, जब एक फादर सन के लिए करता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न, दैट्स अनकंडीशनल लव. तो जब आप उस वे में कर सकते हैं उस पर्सन को, वो मोमेंट, दैट्स द मोमेंट व्हेन यू नो दैट शी इज द वन और ही इज द वन. That's lovely what Bhaiya said, and it really tells us a lot of things ki when you have this unconditional love for somebody, that is the time when she's the one. That is the boys perspective, and I've always realized कि the girls होते हैं, उनका एक अलग ही पर्सपेक्टिव होता है, हमेशा उनका एक अलग ही डायरेक्शन होता है, उनका एक अलग ही व्यू पॉइंट होता है. तो I would like to ask प्रियंका भाभी once कि आपके हिसाब से when was that moment when you felt कि he is the one
कुछ मिथ्स वगैरह है जो कि आप बस्ट आउट करना चाहते हो टू आवर ऑल आवर ऑडियंस बेसिकली, एंड या आई वुड जस्ट वांट टू हियर कि क्या हुआ था, व्हाट वाज द फीलिंग एट दैट टाइम एंड व्हाट रियली हैपेंड? एक्चुअली इट्स अ मिथ कि लड़कों को लगता है कि लड़कियों को बड़ी चीजें इम्प्रेस करते हैं। इनफैक्ट जो छोटी छोटी क्यूट लिटिल थिंग्स जो होते हैं वो सब हमें ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम अपसेट होते हैं, एक स्माइल ले आना फेस पे। कभी जब हम कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है, हम गुस्सा हो जाते हैं, तो कुछ भी करके मनाना है एट एनी कॉस्ट। फिर या जब हमारे लिए प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, या तो कभी कभार पॉजेसिव हो जाते हैं, तो ये सब हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं। यही वो मोमेंट्स है जब हम फील करते हैं हाँ शायद ही इज द वन। Okay, that is something which is very beautiful. थोड़ा शर्मा के थोड़ा मतलब अपने फीलिंग्स को थोड़ा सा अभी शर्मा के वो इजहार करने की कोशिश तो कर रही थी, बट विद एवरी आउंस ऑफ टेलिंग कि प्रोटेक्टिव होना और स्वीट लिटिल थिंग्स करना, दैट रियली फेल्ट कि भैया वाज बिकमिंग वेरी हैप्पी कि हाँ जो मैंने छोटी छोटी चीजें की है वो इन्हें याद है। दैट इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली लवली। तो विद दैट वी आर थ्रू विद सर्टेन क्वेश्चंस जो कि हमें लगा कि वी शुड टॉक अबाउट रिलेशनशिप, एंड आई मस्ट से कि आप लोग ने लिटरली यू नेल्ड इट because the answers were absolutely beautiful, and like the beautiful couple that we really have, okay, the mammoth of answers, and I'm pretty sure that the viewers will love what you've actually said, which is something crazy. But आप लोग अभी नहीं जा सकते, आपको अभी भी हम लोग थोड़ा देर बांध के रखेंगे because हमारा ये काम है, and we have a small section of games that we want to play, not a game exactly, a round that we want to play, and I hope कि आपको भी मजा आए, and this is the moment जहां आप सब भी वेट कर रहे थे, तो I really hope कि आपको मजा आए। तो we'll start off with the rapid fire round। ये मैंने पहले 2 पॉडकास्ट में basically start किया था, and then we stopped for some reason, so rapid fire से शुरू करते हैं। तो the rules of the games are pretty sweet, you have to be a little energetic right now, ठीक है? I know थोड़ा सा लेट हो चुका है, but still हमें थोड़ा energetic होना पड़ेगा इस वक्त, and your answers has to be rapid, ठीक है? It's not Karan Johar का show, don't worry, ठीक है? No coffee, okay, but the answers की आप to the point answers चाहिए ताकि we have some beautiful answers also। So the first question, ध्यान रखिए कि दोनों क्वेश्चंस है वो आप लोग स्पेसिफिकली दोनों के लिए भी हो सकते हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस मैं स्पेसिफिकली एक इंसान को भी पूछ सकता हूं। तो आप लोग रेडी हो? बिल्कुल रेडी हो, एकदम जोश में हो? ओके, तो फर्स्ट सबसे आंसर हैम्पर है क्या? हैम्पर तो नहीं है क्योंकि हम थोड़ा वर्चुअल ग्राउंड में है, बट यस ऑफ कोर्स द पॉडकास्ट के बाद में पक्का। तो नंबर 1, व्हाट आर द 2 स्वीट थिंग्स that bhaiya does for you which really brings a smile in your face, and the vice versa also? He always cheers me up. कभी भी झगड़ा हो, कभी भी लड़ाई हो, हमेशा आके मना लेते हैं, कुछ भी करके। Sweet little things जो होते हैं। और the second, he's very caring. Okay. बहुत ध्यान रखते हैं। Okay. और भैया आप? Sweet little things का एक तो when she gets angry, गुस्सा होने से बहुत ज्यादा क्यूट लगती है ये, एंड दूसरा ये एक अपने आप में क्यूट लड़की है। अब क्या बोलूं इसमें और क्या क्यूट है? Okay. I have to find some better answers next time. Yeah. Okay, no issues. Number 2 would be कि one advice that you would like to give to people who are seeking love, basically, जो कि search कर रहे हैं love के लिए, or maybe just have fallen in love. What is that one advice that you would like to give them? Love them unconditionally, without conditions, and always try to be the giver in the relationship. Communicate with each other and understand each other. बहुत जरूरी है। Okay. Number 3, अब ये सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है? सपोज भैया जो है वो और आप चल रहे थे या गाड़ी से चल रहे थे, एंड होती है कभी कभी कोई जन आ गई, दिख गई, ठीक है, और भैया का जो आंख है वो उस तरफ धीरे धीरे चला गया। आई डोंट नो ये होता है या नहीं होता, वो तो भाभी बताएगी अब या फिर आपको पता ही है, अट्रैक्शन चला गया। तो एट दैट टाइम यू नो कि भैया ऑल्सो हैज रियलाइज कि भाभी ने देख लिया है, यू हैव स्क्रूड अप, राइट? एट दैट टाइम व्हाट इज द एडवाइस? और जनरली लगता है मुझे ये बाकी लोग भी ये प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे कभी ना कभी, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी वाला सिचुएशन है आपका। तो उस समय भैया आपको क्या करना चाहिए? तो पहले तो बिना पोलराइज लेंस निकलो मत तो आप इसमें हमेशा बच्चा हो गए। ये तरीका लगाते हैं वो। अब वो एंगल से भी पता चल जाता है। अगर नहीं, ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ सिचुएशन हो भी गया, आप लेंस भूल गए,
तो आप अरे उसका ड्रेस अच्छा लगे तुम्हारे लिए ऐसा कुछ खरीद दो। अच्छा, ये कितने बार हो चुका है भाभी, बताइए। हाँ, अभी तक तो पता नहीं था, मैं इसे हाँ। सीरियसली ले लेती थी। अच्छा, ओके। सो आज एक पोल खुल गया बेसिकली, राइट? हाँ, सो कोई तो व्हाट लाइक अभी जैसे ये क्वेश्चन वाला मैंने पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा फंसा दिया आपको, तो लाइक अभी मैं आपको वापस बता देता हूँ कि व्हाट आर द टू थिंग्स दैट यू फाइंड इट टू बी सुपर क्यूट इन हर बेसिकली, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट शी इज सुपर क्यूट। तो आपको ऐसा दो चीज क्या लगता है कि विच इज सुपर क्यूट जो कि कोई और नहीं कर सकती, शी इज द बेस्ट? दिस इज अ कवर अप क्वेश्चन बेसिकली पहले वाला के लिए। इसका स्माइल मतलब वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई गॉट अट्रैक्ट टू हर। एंड दूसरा मैंने जैसे बोला कि शायद ये गुस्सा जैसे करती है, अगेन आई हैव टू से दैट, बट शी इज रियली गुड। नहीं है इसके पास। पॉइंट्स नहीं है क्योंकि क्यूटनेस का थोड़ा कम पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स तुम्हारे लिए कम है। ओके, अभी वापस मेरे पॉडकास्ट के बाद में अभी सैवेज तो एक्ट कर रहे हो, बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। हिम्मत चाहिए। वही तो। ओके, सो लाइक अभी मैं देता हूँ मौका प्रियंका भाभी को, ठीक है? सो व्हाट आर द टू इरिटेटिंग थिंग्स, बदला ले लो बड़ा बढ़िया से, दो से ज्यादा भी बोला तो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। टू इरिटेटिंग थिंग्स दैट यू फाइंड अबाउट हिम व्हिच इज अ लिटिल अनोइंग, कि यार ये क्यों करता है ऐसा? एक तो ओसीडी, he wants things to be perfectly fine, मतलब ऐसे है तो ऐसा ही होना चाहिए, कुछ भी इधर उधर नहीं हो सकता। एंड सेकंड, जब मूड में नहीं होता है, he doesn't like to talk, मतलब he keeps on postponing things, कल बात करते हैं, कल कर लेंगे, ये वो बस। अरे नहीं, ताकि अच्छे मूड से बात करने से अच्छी बातें होंगी। ओह क्या बात है, ठीक है। और लाइक अगर सोचे कोई आर्गुमेंट हो गया, ठीक है, अगर कोई आर्गुमेंट हो गया तो उस केस में हाउ डू यू ट्राई टू सेटल ऑफ द थिंग्स? बेसिकली आर्गुमेंट के केस में आप लोग क्या करते हो? वी ट्राई टू फिनिश द थिंग राइट, मतलब वही पर्टिकुलर डे में हम लोग उसे खत्म करते हैं, डिस्कशन करके, जो भी कहीं ना कहीं हम लोग सेटल कर लेते हैं कि अगर व्यू पॉइंट या तो कॉमन एक व्यू पॉइंट पे आ जाते हैं, या फिर हम लोग डिफरेंट ओपिनियन को एक्सेप्ट करके आगे निकलते हैं। चाहे रात का कितना भी बजे, हम बस वो आर्गुमेंट को फिनिश करके ही That's our rule कि we'll never continue an argument to the next day। आप सो मत, सुबह 4 बज जाओ 5 बज जाओ, पर आप वो आर्गुमेंट को क्लोज कर दो उसी दिन, फिर नेक्स्ट टाइम रिपीट मत करो। ओके, सो लाइक दिस वाज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। और अब जो मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो शायद मैं नहीं, पूरा देश पूछना चाहता है आपको। तो मुझे बताइए कि क्या आप, मतलब इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, टू बिकम वेरी सीरियस अबाउट इट, ठीक है? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आप विनोद को जानते हैं? कौन है? पूरा देश, बिकॉज क्या पता कमेंट में भी विनोद 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 आ रहा होगा, वी डोंट नो। तो क्या आप विनोद को जानते हैं? मैं बहुत ढूंढ रहा हूं, जब मिल जाए मुझे भी बताना। Okay, that is the rapid fire round. That was really fun. That was really good also. We also have one more round which will also make you really happy, I believe, and it will really be a fun activity for both of you, and that is known as the he or the she round. Basically मैं आपको कुछ criteria या conditions बताऊंगा और आपको बताना है कि आप दोनों में से वो कौन है। But yes, that's a very good thing जो आप कर रहे हो बीच में, कि आपने बीच में एक पिलो रख लिया है ताकि आप एक दूसरे को ना देखे, आंसर करते हो। Basically you have to point yourself or the partner, जो भी ये ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक जिसके ऊपर भी ये सूट करता है। नंबर 1, ठीक है, हु इज मोर डोमिनेंट घर पे? ओके, इस केस में तो एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है कौन ज्यादा लाडला है दोनों में से घर पे, लाइक द ममाज बॉय और द डैडीज दैट। ओके, हु इज मोर फनी अमंग द बोथ? सारे क्वेश्चंस में एक ही आंसर। सॉरी, कौन गलती करेगा तो मानेगा नहीं? ओके, ठीक है, हु हैज अ बेटर सेंस ऑफ स्टाइल? ओके, कौन ज्यादा झूठ बोलता है या बहाना मारता है? बहाना तो नहीं मारता, ये तो नहीं मारता। हु इज मोर रोमांटिक अमंग द टू? ओहो, द शाहरुख खान फैन है, उनका जो जीन्स था वो वापस रीजन अप हो गया। तो अब इतने रोमांटिक हो तो थोड़ा सा बता दीजिए, एक कुछ डायलॉग सुना दीजिए। शाहरुख खान फैन हो आप तो एक डायलॉग हो जाए भाभी के लिए। कौन सा? वो भी मैं ही बताऊं।
तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, ऐसे बहुत दिनों बाद ऐसे बोला, ऐसे घर पे तो नहीं बोलते हो, क्या बात है, बड़े कैमरा में बोल रहे हो। ठीक है, उनका एक्सप्रेशन वैसा आया था, बट इट इज अ वेरी स्वीट जेस्चर, कीपिंग द जोक्स असाइड, वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर। एंड जैसे आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले इन द रैपिड फायर राउंड की कभी कभी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो काफी लंबा टाइम तक भी चला जाता था, तो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पीरियड जब तक आपने वो आर्ग्यूमेंट को सेटल अप करने की कोशिश की है? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट डेट? सॉरी, द टाइम। I think 5 or 6, maximum 6. मैक्सिमम 6 क्या सिंपली में बैठा है, तो मतलब एक चीज तो समझ में आ गया कि भैया भाभी को ये मना रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त काफी बार क्रॉस हो गया, अच्छा, 6 बजे तो अब हो बट गया। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि आप जब सोने जा रहे हो देन यू आर स्ट्रेस फ्री, दैट यू डोंट हैव टू रिपीट द थिंग्स, दैट इज ब्यूटीफुल। कोई बैगेज नहीं है, कोई बैगेज नहीं है, एंड कभी भी हमारा जो आर्ग्यूमेंट्स है वो एकदम रिड्यूस मिनिमम लेवल पे आ जाता है फिर, बिकॉज आप बहुत टॉपिक्स पे डिस्कस करके क्लोज कर चुके हो उस टॉपिक को। वो बहुत अच्छी है। कम्युनिकेट करना बेसिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील। So thank you so much. Honestly, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, इतना एफर्ट्स दिया to shoot this podcast. It really means a lot. Lot of takeaways from the podcast, I'm pretty sure. Sweet memories to laugh, the sweet gestures of both of them to enjoy, and a lot of thoughtful thoughts which really makes up this topic, the relationship, and discussing about it a little bit more beautiful. And I really wish that this bond that you both have, this love that you both have, flourishes like blossom flowers, and that roses के साथ में जो आपने बोला ना कि जो क्या बोलते हैं उसको, कांटे जो है, ठीक है, thorns जो है, वो दोनों जन बहुत प्यार से blend हो, and that is how a relationship should be. And thank you so much again, ठीक है, it really means a lot. I've told thank you a lot of times, I know that, but I really meant it. So yeah, thank you. And thank you शशांक for, जो मैंने पहले भी कहा कि इस सेंसिटिव टॉपिक को लाना एंड बीइंग सो थॉटफुल अबाउट इट, एंड एक यू आर फॉर्मिंग अ ब्रिज की हम लोग कहीं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे व्यूअर्स, हम लोग सब लोग कहीं ना कहीं कुछ सीखे हैं। एंड हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात कि शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमने कुछ ऐसा कहा हो जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया हो, या फिर बहुत कभी कभी लग रहा है कि एक सिंपल स्टोरी हर बार ऐसा नहीं होता है, देयर आर सम डिफिकल्ट टाइम्स, एंड वी डू एग्री विद द फैक्ट कि हर केस में एक डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है। एंड अगर कुछ ऐसा जरूरत है कि वी कैन डिस्कस अबाउट द इशू, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर दैट। एंड सॉरी अगर कुछ हमारे तरफ से भूल चूक हो गया, वी आर रियली सॉरी अगर कुछ हो गया। एंड शशांक, थैंक यू सो मच। एंड आप इसी तरह पॉडकास्ट डिफरेंट टॉपिक्स में करो, सो वी गेट टू लर्न ईच एंड एवरी डे। So obviously, if there is any queries that you would like to ask them, if you feel that you have to still question them anything, and they are free to, they'll be available to you. I'll also link their Instagram profiles in the description below for any queries. I hope that you all like the podcast. In case you have liked the podcast, आपको drill पता है, like, subscribe, comment जरूर करना। इस पहला पॉडकास्ट में मैं बताने वाला जिसमें आपको कमेंट जरूर करना है, बिकॉज इट रियली मीन्स अ लॉट कि आपका ओपिनियन क्या था रिगार्डिंग द पॉडकास्ट। प्लीज मेक श्योर दैट यू कमेंट एंड ऑल्सो लाइक और डिसलाइक, दोनों में से जो भी आपको करना है जरूर से करिए, बिकॉज योर एंगेजमेंट इज सुपर इंपॉर्टेंट इन दिस। एंड आई रियली होप कि आगे जाकर हम लोग कई अदर टॉपिक्स ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट को लेके आए पॉडकास्ट में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन केस अगर आपको पता चले कि हैशटैग विनोद कौन है, तो प्लीज मुझे इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जरूर बताइएगा, बिकॉज विनोद बहुत जरूरी चीज है। Till then, take care everybody. Bye. Thank you everybody. Again, I guess I told thank you for the last 25 times, I believe, and off camera and on camera, but still, it's okay. It's all right. Take care everybody. Vinod. Bye. Bye. Thank you. Bye.